Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I'll kindly request you all to subscribe to my channel for more knowledgeable content. So students, in today's lecture, we will be discussing the questions in the mathematics and physics sections of the Beria's interest test conducted on 15 March 2025 for the engineering program, undergrad engineering program intake for software engineering, electrical, computer engineering, and mechanical engineering as well in the campuses of Lahore, Karachi, and Islamabad. So before solving question number one, I would like to inform you that a new preparatory session for Beria, Zabis, FAST, ComSets, AIR, IBA, and NAST is starting from 20th of March 2025, inshallah. So if any one of you wants to join our sessions, they can contact us via the numbers given on the screen. So we'll all be having live classes in this session as well, tons of recorded lectures and university specific and university centric and focused MCQs बैंक टू प्रिपेयर फ्रॉम. सो हर यूनिवर्सिटी के लिए उस यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस टेस्ट के रेलिवेंट उसके डिफ़िकल्टी के मुताबिक हमने अपना एक पूल ऑफ क्वेश्चंस एंड सेशंस को डिज़ाइन किया हुआ है. आप उनको ज्वाइन कर सकते हो एंड इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू आउट टू 100% एस योर एग्जाम इंशाल्लाह. सो आज के पेपर में जो फर्स्ट एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ बेरिया. जीरो का इंटीग्रल पूछा गया था. सो रिमेंबर, जीरो का इंटीग्रल इज कांस्टेंट, इट्स नॉट अ जीरो. So the integral of 0 ka integral is 0 and you add the constant of integration whenever you take an integral. So 0 plus constant is constant. So the right answer here was constant. There was another very easy question and you were asked to find out the derivative of cos of x. So there were two type of questions related to cos of x. क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पूल ऑफ क्वेश्चन में से रैंडमली क्वेश्चन जनरेट होके आपके स्क्रीन के ऊपर आता है. तो कुछ स्टूडेंट्स तो दे वर लकी इनफ कि उनके पास सिंपल क्वेश्चन था कि कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया था. सो कॉज ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज माइनस साइन ऑफ एक्स. So some of the students, they had this question that was cos of 3x. So the derivative of cos of 3x is minus sine 3 of x and the derivative of 3x multiplied. So the 3x का जो derivative आप multiply करोगे तो वो 3 आ जाएगा. So the answer will be minus 3 sine 3x. So next question was, there was an application of x plus y ka whole cube. So x plus y as a whole cube formula is x cube plus 3xy into x plus y ka cube. So the question related to this was, you were given the value of x plus 1 by x equal to 3 and you were asked to find out the value of x cube plus 1 by x cube. So what you will do here is you will simply be taking cube on both sides. So I'll be taking cube on both sides. So this will become a cube plus 3ab into a plus b ka cube. So b here is 1 by x ka cube. So 3 ka cube. So 3 ka cube's value is 27. Why? 3.3 is 9 and 9.3 is 27. So this makes up as 27. So now here remember, x and 1 by x will get cancelled with one another. You will be left with 3. So this will be x cube plus 3 into x plus 1 by x plus 1 by x cube. So what I will do simply here is I'll be inserting the value of x cube plus x plus 1 by x here, because हमने तो x cube plus 1 by x cube की वैल्यू को फाइंड आउट करना था ना. सो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 ही थी, क्वेश्चन में गिवन थी. 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स क्यूब यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ है एंड 27 वाज ऑन द राइट हैंड साइड. तो 3 3 जा इज 9. सो दिस विल बी, सो 3 3 जा इज 9. सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 3 3 जा 9 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. 3 3 जा इज 9. सो 27 में से आप 9 को माइनस कर देंगे. सो 27 से जब आप 9 को माइनस करेंगे, 18 was the answer of this question. So it's fairly easy question, but in detail मैंने सॉल्व करवा दिया ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ जाए एंड आप इजीली इसको सॉल्व आप कर सको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू फाइंड द HCF ऑफ 50 and 100. So again a easy question. The HCF of 50 and 100 is, so to find out the HCF, let me break it up. So 50 can be written as
2 into 5 into 5, and 100 can be written as, so 100 can be written as 2 into 2 into 5 into 5. So 2 2s is 4, 4 5 is 20, and 25 is 100. So common यहाँ पे हमारे पास, this is common as well, this is common. So the common factors are 2 into 5 into 5. So 5 5s are 25, and 25 into 2 is, so 25 into 2 is 50. So the answer here is 50. The next question was, you have to integrate f dash of x. So remember, मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में भी ये क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करवाया हुआ है। जो स्टूडेंट्स मेरे लाइव क्लासेस में थे उनको भी ये बताया कि मैंने ऑलरेडी ये बात बताई है। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है कि इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव दे आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ वन अनदर। तो जब भी आप एक डेरिवेटिव टर्म का इंटीग्रल ले लेंगे, सो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन विल गेट कैंसल एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली विद फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स हियर वाज द आंसर हियर अलोंग विद, बल्कि इसमें सी भी ऐड नहीं होगा, सिंपली। So next you were given a set of equations and you had to find out the value of x and y. सॉल्व करना था आपने साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस को और x and y की वैल्यू को जो आपने फाइंड आउट करना था। तो द चॉइस इज योर्स, यू कैन आइदर सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन और बाय substitution method. So let me rewrite the equations for your understanding. So they are 3x plus 2y is equals to 13, and the second equation है ना जी, that is given as 5x minus y is equals to 13. So I am using substitution method. What I will do here is कि मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, माइनस y को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, so this will become plus y, and 13 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, so this will become 5x minus 13 is equals to y. यहाँ पे हम इसको प्लग इन कर लेंगे, सो दिस विल बिकम 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 13। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, दैट विल बी 10x माइनस 2 13 is 26 is equals to 13. I will be taking minus 26 on the right hand side, so this will be 13 plus 26. So 13 plus 26 की value is 39, and on the left hand side you will be left with 3x plus 10x, that is 13x. So 13x की वैल्यू 39 आ गई, 13 से कैंसिल कर लेते हैं, x की वैल्यू विल बी 3, सो x की वैल्यू 3 है। प्लग इन कर लो वापस यहाँ पे आप, एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। सो 5 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 13 इज इक्वल टू वाई आ गया, 5 3 ज़ा 15, एंड 15 में से 13 को आपने माइनस किया, सो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सो y is 2 and x is 3 for these set of equations given. So cos x is an even function or an odd function. So cos x जो है ना by definition इट्स एन इवन फंक्शन। वाई, क्योंकि कॉज ऑफ एक्स के अंदर जब आप कॉज ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करते हो तो वापस कॉज ऑफ एक्स ही आ जाता है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। सो मैं इसको फ्यूचर के लिए कॉन्सेप्ट भी इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल्दो मेरे लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन है। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करें और वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आप जो है वो इवन फंक्शन कहते हैं। और आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप एफ ऑफ माइनस एक्स प्लग इन करें एंड माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को आप जो है वो ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। सो दिस इज योर ऑड फंक्शन एंड दिस इज योर इवन फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बाय वाई डॉट वाई बाय जी इज इक्वल टू 11 है। व्हाट आई विल डू, एंड यू वर आस्क्ड कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर बाय जी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो इतना कोई मसला नहीं है, यू विल बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब भी होल स्क्वायर होगा ना, तो ईच एंड एवरी टाइम विल गेट स्क्वायर्ड। So what I will do here is I'll be taking the whole square. So यहाँ पे जब मैं whole square करूँगा तो यहाँ पे 11 का square करूँगा, so this will become x square by y square dot y square by z square is equal to 11 का square is 121. So the answer here is 121. So next question is what will be the change in the capacitance if the area of the plates is doubled. So physics का related भी कुछ question मैंने आज के टेस्ट के ऐड किए हुए हैं। सो ये पूछा जा रहा है आपसे कि अगर आप कैपेसिटेंस को कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पे क्या असर होगा अगर आप एरिया ऑफ द प्लेट को डबल कर देते हो। सो द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, सो द कैपेसिटेंस गिवन बाय सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी होता है इन केस ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय डी। सो अगर एरिया आपका डबल हो जाएगा, सो एरिया न्यू एरिया अगर आपका 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, तो दिस विल बी 2a epsilon naught epsilon r divided by d. So what ये यहाँ पे जो है it will become is the original capacitance. So the new capacitance is twice the original capacitance.
सो डबल हो जाएगी आपकी कैपेसिटेंस जब आप एरिया ऑफ द प्लेट्स को डबल करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन कैरिंग अ बकेट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द वर्ड ऑन द बकेट विद रिस्पेक्ट टू हिज मोशन विल बी. सो एक आदमी है जिसने एक बकेट को होल्ड किया हुआ है, एक बकेट है जिसको उसने अपने हैंड्स में होल्ड किया हुआ है. तो जो फोर्स बकेट के ऊपर इस केस में है दैट इज अपवर्ड एंड द मैन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स जो है वो बकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में. एंड वी नो दैट द वर्ड एन इज गिवन बाय एफ डॉट डी cos ऑफ थीटा. बेसिकली इट्स अ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है. सो फोर्स आ जाएगा, ये डी आ जाएगा cos ऑफ, सो cos ऑफ 90 आ जाएगा. cos 90 की जो वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू 0 है. सो वर्ड डन की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 आ जाएगी. सो वर्ड डन यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0. व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. प्रेशर का यूनिट आपसे पूछा गया है. सो प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल्स होता है एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. प्रेशर इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर ऐड करती है तो जो प्रेशर हमारे पास बिल्डअप होता है ना वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एंड दिस इज नोन एज पास्कल. इसको आप जो है ना वो पास्कल का नाम जो है वो देते हैं. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस. इसका पार्ट 2 लेके मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके लिए आऊँगा. सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द वेरियस CBT for engineering which are being conducted these days. And by the way, again, I'd like to inform you that from 20th March, inshallah, our new session for Beria is starting. So if any one of you wants to join this lengthy session, almost 3 months का ये सेशन होगा एंड बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल इसकी फ़ी है. 24/7 आपके पास इंस्ट्रक्टर सपोर्ट है. उसके अलावा लाइव लेक्चर्स हैं डेली बेसिस के ऊपर. रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसके सेपरेट हैं एंड जो डेली के लाइव लेक्चर्स हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं एंड आप उनसे भी प्रिपरेशन वापस दोबारा कर सकते हो. टन्स ऑफ MCQs टू प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर्स के रेलिवेंट क्वेश्चंस. देखिए पास्ट पेपर तो कोई भी यूनिवर्सिटी अपने रिलीज नहीं करती इंट्रेंस टेस्ट की, बट बिकॉज आई बीन प्रिपेयरिंग और माई टीम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग बेरिया पीपल फॉर बेरिया यूनिवर्सिटी सिंस दे शिफ्टेड टू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आफ्टर 2019. सो जो स्टूडेंट्स हमारे इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर होते हैं हम उनसे फीडबैक बेसिस के ऊपर डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं. तो फीडबैक क्वेश्चंस को भी ऐड किया जाएगा, उसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा एंड इंशाल्लाह अगर आप प्रिपरेटरी सेशन को ज्वाइन करते हो, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, तो यू विल बी इजीली बी एबल टू एस अप योर इंट्रेंस टेस्ट ऑफ बेरिया यूनिवर्सिटी. So this was all from today's lecture. Thank you so much for watching this video. Kindly like this video, share this video with your friends and subscribe to our channel. Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.